Hello sir, my name is Prasant Ranjan and I am from Kirodimal College. Sir, my topic is the factor affecting the voyages of Columbus. Christopher Columbus, an Italian explorer and navigator from the Republic of Geneva who completed four Spanish voyages. The incidents of Constantinople in 1453, which blocked trade routes like North Africa and Red Sea for the Europe by the Ottoman Empire, which resulted into the limiting of trade of European nations. To withdraw that effect, Europeans started discovering the Earth's surface through the sea to find a new trade partner, new goods, new routes for trade through sea. And in that journey they get supported from government and big merchant. They in that journey they also spread Christianity as a faith in the world. They also searching the imaginated precious stone, metal, spices in Europe and Silk Route. They also know the unknown places. Since it was the transition of medieval to modern phases through Renaissance movement, the development of science and technology, and in that sense, the establishment of first institute of geographic research at Sargeras near St. Cape Vincent in 1418 took place, which contributed to the development of scientific and technological department, and it also contributed to the improvement in the cartography and map making. And this helped the navigator, especially the Columbus at that time, to invades the new area or new land by using their support. They try to launch or imply the concept of colonization. They started conquering unknown places and make them colony, and using their land to extract the precious stone, metal, and the other material which they did not have any knowledge earlier. Portuguese and Spanish dreaming of finding trade route to the far east, and in that sense, and in that case, the Christopher Columbus, who Christopher Columbus, who went on a journey to discover India in 1942, and during this time he reached on the island of San Salvador, that is Bahamas, and during the same time another navigator Cabral who discovered the Brazil. Other factor which contributed to the navigation was the was the concept of colonization, which they find new places and make them colony, and make the indigenous people of that places as a slave. And the second one was the use of magnetic compass and the improvement in the art of navigation. The most important factor, that was the invention of printing press, which help them in printing the map or other, through which they may navigate for next time or second voyages. Since this phase witnessing the transition of medieval phase to modern phase through Renaissance movement, and many scientific and technological development took place and help in the navigation and make them easier to find the new places. This was the phase of invention of scientific technology, and other concept like the concept of colony, and which is starting through
discovering the new places or new land or new island. um, This is Ritu from Indraprasth College for Women's. I will describe encounter of two different worlds, Columbus and Native Americans. Columbus arrived in America in 1492, often thought of a big discovery. But what really happened when he meet the Native Americans for the first time? Let's take a closer look. When Columbus landed in the America, he thought he reached India. So he called the Native Americans, he meet Indos, which means Indians in a Spanish word. But these peoples were not Indian, but not from India at all, and they were a Taino tribe to the native Caribbean island. कोलंबस अपनी पहली यात्रा के दौरान कुछ आइलैंड डिस्कवर करती है, जैसे कि बहमास, जिसपे उसने पहली कदम रखे थे अपने। उन्हें पहला लैंड बहमास की ही मिली थी, जिन्होंने उनका नाम सन सल्वाडोर रखा था। और वहां के बहामास, और इसके बाद फिर वो क्यूबा की तरफ गए, और उसके बाद हिस्पेनुला। एंड वहाँ के जो नेटिव ट्राइब्स थे, जैसे कि लुकायान, टैनो, आरवक, इन सभी ट्राइबों से, इन ट्राइबों का इनकाउंटर करते हैं और ऐसा बताते हैं कि ये लोग बहुत ही फ्रेंडली, पीसफुल हैं, और वहाँ के लोग बहुत पीसफुल नेचर्स के क्लोज रहना जानते हैं। और ऐसा उन लोगों के पास ऐसा चीज, कोलंबस ने ये भी देखा है कि वो लोग गोल्ड ज्वेलरी वियर करे हुए हैं, कान में उन्होंने कुछ अपने पहने हुए थे। तो और ऐसा बताते हैं कि वो, कोलंबस ऐसा बताते हैं कि वो लोग लुकिंग, मतलब लुक के लिए गुड लुकिंग थे, हैंडसम थे। और जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के लिए बहुत ही डिफरेंट, स्ट्रेंज होते हैं और कंफ्यूजिंग रहते हैं। एक दूसरे की लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट रहती है। एंड फॉर द टैनो, मीटिंग कोलंबस एंड हिज crew was strange and confusing. They looked and acted differently from the Taino. The Taino used to living closer to nature, while Columbus and his crew men come from distant land with different customs and beliefs. कोलंबस ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि उन लोगों बहुत ही सिंपल और साधारण जीवन व्यतीत करते थे, जैसे कि उन लोगों के पास हथियार वगैरह नहीं थे, वो लोग पुराने मेथड से लड़ाइयाँ करते थे। और जब उन लोगों का आपस में इंटरेक्शन हुई तो कोलंबस ऐसा बताते, बस जब उनसे मिलते हैं, वहां के नेटिव ट्राइब से जब उन लोगों का इनकाउंटर करते हैं, तो वो ऐसा बताते हैं कि उन लोगों ने बहुत ही पीसफुली उनका स्वागत किया है, मतलब अच्छे बिहेवियर के साथ उनसे उनकी मीटिंग हुई है। कोलंबस ने कुछ चीजें गिफ्ट, एज ए गिफ्ट उन्हें दी थी, ग्लास बॉल्स एंड ऐसा कुछ चीप सी चीजें थी, जैसे कि टूटे हुए कांच। तो इसके बदले उन्होंने, जो नेटिव ट्राइब थी वहां के जो इंडिजिनियस पीपल थे, उन्होंने उसके बदले कुछ प्रीसियस चीजें, जैसे कि गोल्ड एंड अनदर प्रीसियस चीजें उन्हें दी। तो कोलंबस को ऐसा लगा कि ये लोगों को बार्टर सिस्टम का भी आइडिया नहीं है, इन लोगों से, मतलब ये लोग अच्छे हैं, पीसफुल हैं, फ्रेंडली बिहेवियर है, बट इनको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है बाहर के लोगों के साथ। इन्हें बार्टर सिस्टम के लिए नहीं पता है, इन्हें फाइट कैसे करनी है ये भी नहीं पता है। एक इंसिडेंट ऐसा बताते हैं कि उन्हें एक तलवार दी गई, तो उन्हें ये आइडिया नहीं था कि तलवार कैसे यूज करते, तो उन्होंने अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लिया। तो ऐसा कोलंबस बताते हैं कि ये लोग इतने सिंपल सीधे से हैं कि इनको हम 50 लोग मिल के भी इन्हें पूरा कॉलोनाइज कर सकते हैं, इनसे एज ए स्लेव काम करवा सकते हैं। और कोलंबस की डिस्कवरी जो भी थी, मतलब एक सिर्फ एज ए डिस्कवरी नहीं ले सकते हैं हम लोग। कोलंबस का वहां पहुंचना बहुत ही थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रही है वहां के चैनो और अनदर ट्राइब्स के लिए, बिकॉज कोलंबस ने बताया कि वो लोग बहुत सिंपल से थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे बिहेवियर के साथ साथ कुछ जगह ब्रुटैलिटी दिखाई है, बहुत जगह वॉयलेंस देखने को मिलते हैं उस नेटिव ट्राइब्स के लिए। कोलंबस के कांटेक्ट में आने के बाद वहाँ कुछ चीजें जैसे कि फैल गई, वहाँ के ट्राइबों में सिकनेस आ गई, एंड कुछ बीमार डिजीज स्प्रेड हुए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स एंड
प्लेग्स ईटीसी, और इन सभी से वहां के नेटिव ट्राइबों को बहुत सामना करना पड़ा। जो वहां के नेटिव ट्राइब्स थे वो नेचर्स के क्लोज रहना चाहते हैं, और ऐसा एक कंट्रोवर्सी भी है कि कोलंबस के वहां जाने से उन लोगों के जो नेचर के क्लोज थे उन्हें उनसे दूर किया गया है। और ऐसा कहीं कई हद तक सही भी है, क्योंकि कुछ चीजों को जैसे डेवलप होती है तो कुछ नेचर्स को मतलब फॉरेस्ट क्लीन करने पड़ते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस एंड अदर चीजें। और वो लोग इतने सिंपल थे कि कोलंबस अपने साथ 50 स्लेव भी लेके आए अपने पहली वॉयजेस के दौरान, और वो लोग सिंपल थे बहुत, और सीधे साधे से ट्राइब थे जिनका कि बहुत मिसबिहेव उन्हें कोलंबस के द्वारा देखा गया है। बहुत ही ब्रुटैलिटी, वायलेंस उन्हें फेस करना पड़ा है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा है उन्हें। That's it. My name is Vishnu and I am from Department of History. मुझे जो टॉपिक मिला हुआ है वो कोलंबस का फर्स्ट बयाग और सेकेंड बयाग का एक मिक्सअप है। तो मैं कोलंबस के फर्स्ट बयाग से मतलब स्टार्टिंग करने वाला। जैसा कि मैंने पढ़ा है कुछ रीडिंग्स को, उसमें बताया गया है कि कोलंबस चूँकि उसका जो भी मतलब जो उसके पूर्वज थे वो लोग ही नेविगेशन में और ये एक्सप्लोर करने में काफ़ी आगे थे, और उन्हीं से प्रेरित होकर कोलंबस भी इन सब चीज़ों में आगे बढ़ा। और कोलंबस ने बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा है कि कोलंबस जो स्पेन के जो भी स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, और जो भी रोमन और ग्रीक्स फिलोसफर हैं, उनकी जो भी किताबें हैं, बुक्स को पढ़ के और चीज़ों को ध्यान में रख करके और वो अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। तो बात करते हैं हम उसके फर्स्ट वॉयज की। तो फर्स्ट वॉयज उसका पर्पज़ ये था कि वो मेनली जो भी कीमती वस्तुएं थी और जो भी स्पाइसेस थी उसकी तलाश में वो चाहता था कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूं। चूँकि वो जाना चाहता था कि वो ईस्टर्न एशिया में जाना चाहता था और गलती से वो वेस्टर्न एशिया में चला गया। तो वेस्टर्न एशिया में सबसे पहले वो पहुंचा बहामस, जहाँ जिसको उसने सैन सल्वाडोर नाम दिया, और बहामस के लोग को वहाँ पे एंडीज नाम दिया था उसने। वहीं पे उसको ऐसे मतलब बिल्कुल साधारण लोग मिले थे उसको, बिल्कुल नेक्ड और बिल्कुल पेंटेड लोग थे। उसके बाद जर्नी आगे बढ़ती गई, फिर वो सेकेंड में क्यूबा गया। क्यूबा वहाँ पे क्यूबा उसको लगा कि ये चाइना है, लेकिन वो चाइना नहीं था, क्योंकि उसका अभी न्यू नेम है क्यूबा का, सॉरी वो थर्ड में आया है, थर्ड में गया है वो हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला ये कोलंबस मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉयज वाज द आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरोपियंस पहली बार अपना कोई सेटलमेंट एस्टेब्लिश किए। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ अगर पॉइंट की मैं बात करूँ तो एनकाउंटर्स विथ इंडिजियस पीपल्स, जहाँ के वो लोग थे उनसे बात करना, उनसे जो आके टैनोस थे, टैनो जनजाति, उनसे बात करना, जो कि वो साधारण थे। तो चूँकि कोलंबस की इस वयाग में ये बताया गया है कि कोलंबस उनको नई ये जूता दिया अपने, और वहाँ से उन लोगों से उसके बाद उसके एवज में उन्होंने उसको सोना दिया। ओके, सोने की कीमती वस्तुएं दी। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे फ्लोरा और फौना है। फ्लोरा और फौना, चूंकि कोलंबस ने कुछ नए नए वहाँ के प्लांटेशन को देखा, जैसे कि मेज हो गया, तंबाकू हो गया, और भी और मेज, टोबैको, उसके बाद पाइनएप्पल, जो कि कोलंबस के लिए बिल्कुल ही नया था। अगर हम बात करें तो कोलंबस चूंकि जाना चाहता था ईस्टर्न में, लेकिन उसकी मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस कैलकुलेशन, मिस जियोग्राफिकल कैलकुलेशन की वजह से वो पहुंच गया वेस्ट में। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो यूरोपियन एक्सप्लोरेशन काफ़ी आगे बढ़ा, और इससे नए नए एक्सप्लोरेशंस बहुत ही बढ़े आगे। कोलंबस
वयाग चूँकि हिस्ट्री में यहाँ से हम लोग जैसे अगर कोलंबस की चारों वैग्स की बात करें तो चारों वैग्स ख़त्म होने के बाद यहाँ से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत मानी जा सकती है। चूँकि यहाँ पे अगर सेकेंड वैग में देखें तो सेकेंड वैग में वो 17 फ्लीट्स को लेके जाता है और 1200 लोगों को लेके जाता है और वहाँ से मतलब कुछ लोगों को लाता है। चूँकि कॉलोनाइजेशन वहाँ के लोगों को वहाँ के लैंड को एक कॉलोनी के रूप में देखता है। फिर उसके बाद चूँकि बहुत सारी चीज़ें उसके बाद हैपेंड होती हैं, चूँकि जिसमें से एक माना जा सकता है कि वहाँ पे चूँकि जो नया धर था वहाँ के लोग किसी धर्म को ज़्यादातर नहीं मानते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये साधारण लोग हैं और वहाँ पे हम ऐसे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अमित है और मेरा टॉपिक है सेकेंड वोएजेस एड्स कोलोनाइजेशन एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन गोल्स। ठीक है, और हम देखते हैं कि 28 नवंबर 2020 को सेकेंड वोएजेस को अपडेट किया जाता है। फिर मार्च 1493 में वे अपनी फर्स्ट यात्रा शुरू करते हैं न्यू वर्ल्ड के लिए और वे नई दुनिया की खोज कर लेते हैं। हालांकि उनको नहीं पता होता है कि उन्होंने नई दुनिया की खोज कर ली। ठीक है, फिर वे मतलब कुछ चाइना और जापान के द्वीपों को खोज लेते हैं और फिर और वे उनके पास चले उन द्वीपों के पास जाते हैं वे जो उनके लिए अज्ञात होते हैं। ठीक है, फिर वे आगे भी अपनी जो खोज है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और वे आगे की खोज में जारी रखते हैं। ठीक है, और उनकी जो फर्स्ट जर्नी थी वो बहुत थोड़ी बहुत असफल रहती है। ठीक है, फिर वे बाद में मतलब जो उनके वे जो फर्स्ट यात्रा के लिए 3 जहाज लेके जाते हैं, उनमें से जो 2 जहाज होते हैं वो गुम हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वे अपने साथ थोड़ा बहुत गोल्ड्स लेके वापस लौटते हैं। फिर वे हिस्पानियोला द्वीप पर गुलाम स्वदेशी लोगों को एक समूह को वापस लेकर अपने यहाँ स्पेन लौटते हैं और फिर वे मतलब कि अपनी सेकेंड जर्नी शुरू करते हैं जिसमें वे बड़े पैमाने पर उपनिवेशीकरण और अन्वेषण करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि वे जैसे कि सेकंड जर्नी में वो कुछ द्वीपों को ढूंढते हैं जैसे डोमिनिका, ग्वाडालूप और एंटीलेंस। ठीक है, फिर उसमें वे देखते हैं कि पहले देखे गए जो द्वीप थे उनका नाम जो सबसे पहले दिखा उसने कोलंबस ने उसका नाम डेनिका रख दिया। ठीक है, फिर उसने मतलब उन द्वीपों के चारों ओर दौरा किया तटवर्ती बैंकर मतलब जो तट थे उनका। फिर वे आगे बढ़ते हुए जैसे ग्वाडालूप, मोंटसोरेट, ठीक है, फिर रोनाल्डियो एंटीलुजा, फिर लुवाड द्वीप समूह एंटीलुजा श्रृंखलाओं का खोज कर अन्वेषण करते हैं। फिर वो प्यूर्टो रिको एक द्वीप होता है उसका भी दौरा करते हैं। ठीक है, फिर कोलंबस दी लाजवर्द नामक एक छोटी बस्ती पर 39 लोगों को अपनी सेकंड यात्रा के दौरान छोड़ देते हैं वहीं पे। ठीक है, एक हिस्पानियोला नामक एक द्वीप होता है उसको छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कोलंबस को बाद में पता चलता है कि जिन 39 लोगों को छोड़ा हुआ था उन्होंने वहाँ पर आफत मचा दिया है, वहाँ पे मतलब वीमेन के साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो फिर और उन लोगों को नाराज़ कर दिया है। ठीक है, फिर उन्होंने जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे उन्होंने उन पर 39 लोगों पर हमला किया। ठीक है, और फिर देखते हैं कि जो हिस्पानियोला था वहाँ पे मतलब लैंग्वेज और उनका जो लैंड था वो अलग था बिल्कुल टोटली, और वहाँ पर एक न्यू सिटी बसाना एक मतलब बहुत ही कठिन कार्य था। ठीक है, फिर वहाँ पे देखते हैं कि जो मतलब बर्नार्डी एक व्यक्ति होता है उसके नेतृत्व में वहाँ पर लोग विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो कोलंबस होते हैं, कोलंबस मतलब उनको जो साजिशकर्ता होते हैं उनको वो दंडित करते हैं, मतलब जो भी साजिश करते हैं। ठीक है, फिर वे इसाबेला साइट थी वो वैसी की वैसी बनी रहती है, वो विकसित नहीं होती है। ठीक है, फिर वो 1906 में एक नई साइट की खोज पर चले जाते हैं जिसको वे सेंट डोमिंगो के नाम से मतलब सेंट डोमिंगो के पक्ष में छोड़ देते हैं। फिर वे क्यूबा और जमैका की यात्रा पर निकल जाते हैं। अप्रैल में इसाबेला की बस्ती को अपने भाई डियोगो के पक्ष में छोड़ने के साथ हाथ में छोड़ देते हैं। वो 13 अप्रैल को क्यूबा पहुंचते हैं, यानी पहली यात्रा में खोज लिया था लेकिन पहुंचते हैं 13 अप्रैल को। फिर 5 मई को जमैका से क्यूबा के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर खतरनाक जो तट होते हैं आसपास के उनकी खोज करते हैं। फिर भी बढ़ते हुए मतलब
20 अगस्त 1494 को वे इसाबेला तट पर लौट आते हैं वापस। उनको थोड़ी बहुत मतलब संपत्ति मिलती है और उसमें से अधिकांश जो पार्ट होता है कोलंबस वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वे मार्च 1946 में मतलब जब उनके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो वे मतलब उसके कारण स्पेन लौटने को मतलब मजबूर हो जाते हैं। वे स्पेन वापस लौट आते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो वो मतलब न्यू वर्ल्ड के लोगों को गुलाम बनाए और लोगों को अपने साथ वापस लेके लौटते हैं और फिर वे मतलब सोने और जो चांदी का व्यापार होता है उसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो अब जो सेकंड यात्रा होती है उसमें वे खाली हाथ में लौटना चाहते हैं, ठीक है, स्पेन में। फिर रानी इसाबेला जो उनको देखकर वो देखती है कि फर्स्ट यात्रा के दौरान वे अपने साथ कुछ स्लेव्स को लेकर आते हैं तो आदेश पारित करती हैं। वो कहती है कि न्यू वर्ल्ड के किसी भी लोगों को मतलब दास नहीं बना जाएगा, वो स्पेन के कानून के अधीन है। तो हालांकि उनके मतलब और उनके जो आदेश होता है उसकी अवहेलना की जाती है, उसके आदेश को मतलब माना नहीं जाता, तो भी उसके बाद भी आदेश मतलब उनका जो आदेश आता है उसके बाद भी गुलाम मतलब स्लेब्स को गुलाम बनाया मतलब जारी रहता है, ठीक है। फिर अपनी यात्रा में मतलब वो उनके साथ एक कैंटलर गुजारी होते हैं, साथ रहते हैं। फ्रेंच के बिलोज के साथ से एक शासी व्यक्ति होते हैं, उनके बेटा वाटो ओरोमो जो स्वदेशी लोगों के मतलब राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि डिएगो वेसेलोज और विजेनिनो वोद क्यूबा का गवर्नर होते हैं, ठीक है। फिर बुआंडेला कौन सा एक खोजकर्ता और एक मानचित्रकार व्यक्ति होते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अमेरिका के पहले चित्र बनाए, ठीक है। फिर हम न्यूजन कोडी और न्यूजन प्योर्टो रिको देखते हैं जो फ्लोरिडा के गवर्नर होते हैं और यात्रा करते हैं और बेसिकली वो यूथ्स की जो तलाश होती है डिस्कवरी होती है उसकी खोजने के लिए जाने जाते हैं। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड वेव हम देखते हैं कि मतलब जो ये इनकी जो यात्रा थी उसने क्या किया कि जो कोलोनाइजेशन था उसको चिन्हित किया, ठीक है। फिर इसको मतलब जो इसका जो सोशल इम्पोर्टेंस है हम उसको कम करके नहीं आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है सोशल। आने वाली सेंचुरीज में स्पेन काफ़ी पावरफुल एम्पायर की तरफ अपना कदम बढ़ाता है और वो बेसिकली उनका जो एम्पायर होता है वो न्यू वर्ल्ड के सोने और चांदी पर टिका होता है। फिर हम 1492 से 17वीं सेंचुरी के मध्य के बीच जो भी मतलब आबादी होती है 30% वो कम हो जाती है। फिर पुरानी दुनिया की जो मतलब बीमारियां होती हैं उनके आगमन के कारण, लेकिन अन्य की मृत्यु इन सब कुछ संघर्ष के कारण और कुछ की मतलब स्लेवरी के कारण हो जाती है, ठीक है। फिर हम बाद में देखते हैं कि कोलंबस अपनी दूसरी यात्रा के साथ मतलब यात्रा करने वाले कई लोगों को नई दुनिया के इतिहास में मतलब एक अलग एक परिप्रेक्ष्य के पथ में रूप में महत्वपूर्ण भूमिका। Good afternoon, sir. My name is Mehakdeep Singh, and today I am explaining the biography of Columbus and the conclusion part. तो अगर हम कोलंबस की बात करें तो सबसे पहले तो उसकी जन्म की बात होती है। सर, कोलंबस का जन्म 1451 में जेनोवा में हुआ था। उसके पिता थे डोमिनिको कोलंबो और उसकी माँ थी सुसाना फोंटारोसा। जब कोलंबस का जन्म हुआ तो मतलब वो जैसे जुलाहा थे जो उसके पिता थे और उनकी अपनी छोटी सी दुकान थी। लेकिन उस समय जो हम उस समय के टाइम पीरियड की बात करें तो उस समय का जो टाइम चल रहा था ना भी नेवल एक्सपीडिशन बट भी एक किंग दूसरे किंग से नेवल वार कर रहा है। तो मतलब वो उसके पिता भी थोड़े वो नेवल वारशिप में थोड़े आए। अगर हम कोलंबस की बात करें कि भी कोलंबस ने अपना कैरियर इधर कब शुरू किया, 1465 में जब कोलंबस 14 साल के हुए तो वो अपनी पहली एक्सपीडिशन पे गए। और इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि भी कोलंबस एक्सपीडिशन पे ऐसे नहीं गया। कोलंबस ने ग्रीक से अपनी नेविगेशन टेक्निक सीखी और पुर्तगाल से मैप में मेकिंग में भी थोड़ा उसका इंटरेस्ट था, वो सीखा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो मतलब कोलंबस की वॉयज में उसको सपोर्ट कर रही हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तो कोलंबस का एक भाई था बार्टोलोमियो डे ला कैजस। पहली बात, मेन बात, अगर किसी आदमी को कोई ट्रैवल पे आना है बिना पैसे के तो होता नहीं। तो कोलंबस ने स्पॉन्सरशिप लेने के लिए बार्टोलोमियो को एक बार इंग्लैंड के किंग के पास भेज दिया। लेकिन जैसे वो रास्ते में जा रहा था ना, जैसे सी रूट के मिडल में था तो कुछ पायरेट आए, उसको लूट लिया गया। तो इंग्लैंड वाला तो मतलब वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो कोलंबस की जो शादी हुई थी मोनिस से, वो हुई थी पुर्तगाल में। तो कोलंबस ने सोचा ये मेरा चलो है भी ससुराल, तो इधर से थोड़ा हेल्प मांगते हैं तो क्या पता काम चल जाए। लेकिन जो पुर्तगाल का किंग था वो भी मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं था इस चीज में। उसे लगता था भी कोलंबस की यात्रा में इन्वेस्ट करना, अपना पैसा डुबाना है। तो उसके बाद जो बात आती है, अगर उसके बाद हम बात करें तो हम बात करते हैं स्पेन की। उसमें जो स्पेन में मेन फिगर थे वो मतलब इजाबेला और फर्डिनेंड जेई थे। मतलब ये कैथोलिक मोनार्क थे, पूरा पूरा क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते थे। देयर इज नो डिनाइंग ऑफ इट। तो अगर हम बात करें उस समय का यूरोप ऐसे मतलब क्रिश्चियन वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में बटा हुआ था। जैसे ओटोमन एम्पायर ने इधर जो अपना स्वेज कैनल वाला रास्ता है वो भी बंद कर दिया। तो एक जरूरत थी मतलब वेस्ट की ओर जाने की। अगर इनको अपना ट्रेड भी बढ़ाना है ना तो भी जरूरत थी। तो एक आइबेरियन पेनिनसुला में मुस्लिम किंग था, मतलब ओटोमन एम्पायर के अंडर। जैसे स्पेन के द्वारा उसे पराजित कर दिया जाता है तो द बिशप, आर्क बिशप ऑफ स्पेन, वो जाते हैं इसके इजाबेला के पास कि आपका ये काम भी हो गया। उन्हें लगता था कि जो कोलंबस है ना क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेगा। तो इसलिए बिशप, आर्क बिशप जाते हैं इजाबेला के पास कि आप इसको स्पॉन्सरशिप दे दीजिए। तो मतलब फर्डिनेंड सेकंड इजाबेला की नहीं मतलब टाल सके, उन्होंने इसको स्पॉन्सरशिप दे दी। उसको 20,000 मैराबेडी जो उस समय की करेंसी थी वो दे दी गई। और इसको कह दिया गया कि अगर आप जिस भी इलाके में जाओगे ना, जो भी इलाका कब्जा करोगे, वो उस इलाके की आपको गवर्नरशिप दी जाएगी। प्लस जो वहां से टैक्स कलेक्ट होगा 10% आपको वो दिया जाएगा। दैट इज। अगर हम कोलंबस की यात्राओं की बात करें तो इन्होंने मेन 4 यात्राएं की है। 1492 में, 93 में, 98 में, 1502 में। और जे भी लगाए मतलब थोड़ा आगे पीछे करके टोटल 12 साल का टाइम बनता है जी। मतलब 12 साल में ये यात्राएं होगी कंप्लीट। अगर हम इसकी फर्स्ट यात्रा की बात करें तो 1492 में इसकी यात्रा शुरू होती है। कोलंबस 3 शिप के साथ रवाना होता है यहाँ से, जेनोवा से। वो शिप थी नीना, पिंटा, सेंटा मैरिया। और ये जो नाम है ना नीना, पिंटा, सेंटा मैरिया, जो ये वहाँ के मतलब कुछ अमीर पर्सनैलिटी उनके नाम पे नीना, पिंटा, सेंटा मैरिया, ये नाम उन्हीं के नाम पे हैं। और इनके साथ और जो पिंजन ब्रदर हैं उनको इनका नेविगेटर बना के भेजा जाता है। शुरू में तो कोलंबस यही प्रोत्साहन देता है कि अभी एक दिन में जे हमारा किनारा आ गया, 2 दिन में आया किनारा। थोड़ा कोलंबस को अपना भी लालच था, चलो यार थोड़ा रोक के रखेंगे तो हमें गवर्नरशिप मिल जाएगी, 10% मिल जाएगा, और तो क्या चाहिए। तो अगर बात करें मतलब ये सितंबर में चले थे और अक्टूबर में पहुंच गए जी।
और रास्ते में भी इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे सेंटा मैरिया में भी एक शिपरैक हो गया, तो उसको भी एक पेनिनसुला पे छोड़ दिया जाता है और उसकी रिपेयर में और आदमी को पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम बात करें ना, तो जो सबसे पहले भी लैंड को खोजने वाला कोलंबस तो था ही नहीं, ये उसका नेविगेटर था पिंजन। जो पिंजन ब्रदर गए थे ना, उन्होंने एक ने बताया था सर बोरी लैंड, लेकिन कोलंबस ने उसको अपना गवर्नरशिप चाहिए थी तो उसने कह दिया कि ये मैंने खोजा भाई। तो बात करते हैं, ये 10 अक्टूबर को वहां पहुंच गए और इनको वहां की जो पंछी चहचहा रहे थे उनकी चहचहाट से पता लग गया कि ये लैंड आ गई। और अब हम डिस्क्राइब करेंगे, मतलब कोलंबस ऐसा नहीं था भी एक जगह ही गया है, मतलब कोलंबस पूरे 4 जगह गया है। जो हेटी, जिसको इसने हिस्पैनियोला नाम दिया, वहां पे कोलंबस गया। कोलंबस सैन सल्वाडोर गया, बहामास गया, मतलब एक और था, वहां उसने डिफरेंट ट्राइब्स, टैनो, कैरिब, इन ट्राइब के साथ मीटिंग की। एक जो क्वेश्चन उठता है कि कोलंबस रेसिस्ट पर्सन था, मतलब रेसिस्ट का मतलब तो यही हो गया ना कि उनसे थोड़ा भेदभाव। लेकिन अगर हम बात करें तो जो टैनो ट्राइब थी उसका मतलब ट्राइब एक गांव लगा लो यार, इतनी बड़ी चीज। और उसका जो चीफ था ना वो ग्वाका नगरी, मतलब गांव का हेड ऐसा लगा लो। जैसे ग्वाका नगरी को ये कोलंबस मिलता है तो उसने इसका स्वागत किया, कोलंबस का, इसको अपने घर लेके गया, इसको खाना खिलाया। हालांकि उसका खामियाजा ग्वाका नगरी को ये भुगतना पड़ा कि ग्वाका नगरी का पूरा गांव ही जला के दूसरी ट्राइब के साथ नष्ट कर दिया गया। ये हमें कई एग्जाम्पल मिलते हैं कि कोलंबस रेसिस्ट नहीं था, उसके और भी मोटिव हो सकते हैं। एक बात ये आती है कि भी कोलंबस ने वहां पे जाके जेनोसाइड कर दिया। जेनोसाइड मतलब मर्डर, जेनोसाइड मतलब थोड़ी बिगर टर्म। तो हम देखें उस समय तो बीमारी, कितनी बीमारियां फैल रही थी जो मतलब यूरोप से गई थी। इसमें मतलब ऐसे अकेला कोलंबस को दोषी नहीं ठहरा सकते कि इस भी सारा कोलंबस ने जाके वहां जेनोसाइड कर दिया, वो वहां की बंदों की इम्यूनिटी बर्दाश्त नहीं कर पाई, ऐसा भी हो सकता है। और भी कई फैक्टर हो सकते हैं। अगर एक मेन क्वेश्चन आता है कि कोलंबस ने लोगों को मतलब स्लेव बनाया और स्पेन में ले गए और उनसे काम करवाया, लेकिन उसका कारण भाई रिलीजन के तौर पे उन्हें स्लेव बनाया गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सामने वाले लोग आपसे बार कर रहे हैं तो मतलब उनको खुला नहीं छोड़ा जा सकता, और इसने उनको ऐसा हो सकता है कि प्रिजनर ऑफ बार बनाया हो। जैसे एक विवरण मिलता है कि वो 1495 में, सॉरी ऐसी डेट थी, वो पूरे 2000 स्लेव लेके गया था स्पेन। उनमें से ज्यादातर जो थे प्रिजनर ऑफ बार ही थे। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनको रेस के तौर पे बंदी बनाया और उन्हें ले गया, भी और भी फैक्टर हो सकते हैं। हम एक बात और करें कि जो कोलंबस है ना, अपनी पहली यात्रा में 39 लोगों के साथ गया था और सेकंड यात्रा में अबाउट 1500 लोग ऐसे अबाउट। कोलंबस जैसे उसने फर्स्ट वॉयज में उसने थोड़ा प्रॉफिट देखा तो उसने सोचा कि सेकंड वॉयज में और भी प्रॉफिट होगा, अगर और लोगों को साथ में लेके जाएगा तो थोड़ा और का इलाका हथाया जाएगा। दैट वाज द थिंकिंग।